Ma'am, I've heard that there is no need to use face wash again and again. Only water is enough for your face. So is it right? नॉट एग्जैक्ट अनलेस Okay. सर्टल आपका स्किन बैरियर बिल्कुल ही खराब हो चुका है. If I talk about Korean skincare, आजकल सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा है कि every person is following that trend. I think it's not the Korean products which are effective, it's a social market which has suddenly become very effective. Koreans always had a beautiful skin. In between, you have mentioned about sunscreen. So how sunscreen plays an important role in our routine? सनस्क्रीन एक स्क्रीन जो आपको सन के यूवीए यूवीबी से प्रोटेक्ट करती है. देयर आर 3 लेयर्स यूवीए यूवीबी यूवीसी. अब बहुत बार ऐसा होता है आपकी स्किन पे रेड पैचेस हो जाते हैं और उसके कारण बहुत इची स्किन हो जाती है, तो वो क्यों होता है? स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया उनके गट में होता है, एच पाइलोरी. उसमें वी हैव सीन अर्टिकेरिया क्वाइट प्रेवलेंट. जैसे अलग-अलग स्किन के लिए कौन-सा पील सबसे बेस्ट रहेगा? डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप. जिसकी बहुत ऑयली है उसमें मैं मैंडेलिक सैलिसिलिक पील प्रेफर करूंगी. बोटॉक्स सर्जरी कराने से पहले क्या कंसल्ट करना चाहिए सही तरीके से? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट्स ओनली बोटॉक्स पील. इट्स नॉट अ बोटॉक्स. देयर इज नो नाइफ, देयर इज नो कटिंग. पीपल से दैट अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, यू शुड स्किप ऑयलिंग. तो इज इट ट्रू और नॉट? Is good and is bad. Is good for your hair strand. Hello everyone, I Satakshi welcomes you all to our KZ Talks. Skin issues are a big concern these days and people are blindly following the trends and social media which is leading to a lot of concerns and questions. Today we have a very special guest with us, Dr. Pallavi, who will guide us through all the myths and misconception about the skin related problems. So let's welcome Dr. Pallavi to our podcast. Hi ma'am, how Hi are you? Satakshi, hi. I'm good. मैम सबसे बेसिक क्वेश्चन मैं यही स्टार्ट करूंगी. एवरीबडी वांट्स ग्लोइंग स्किन. सो Exactly. व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड टू गेट दैट ग्लोइंग स्किन? व्हाट ऑल न्यूट्रिएंट्स शुड वी टेक इन आवर डाइट? So, glowing skin is not any rocket science. First and foremost, I would really request all the audience to believe that your genes are the main game changers. जब तक आप 30 साल के होते हैं, it's your genes only playing a part. Post 30, आपका lifestyle, आपकी diet, आपका stress, anxiety, tension, whatever you consume, every bite in your body counts. Right? Coming back to the nutrients, your omega 3, your calcium counts, your vitamin D, your B12, your hormones, specifically in females, if you're talking about your estrogen, progesterone, insulin, prolactin, they all play havoc or they all play beauty to your skin. So, post 30, you see a girl with amazing, flawless skin. You have to first and foremost give credit to her good hormones, her diet, and yes, multivitamins और supplements में मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा concentrate ना करके जो एक social media का एक drive हो गया है, one has to do their own bit by maintaining a lifestyle. आपका stress, आपका sleep सबसे बड़ा आपका multivitamin है. It recovers whatever damage your skin has gone throughout the day. Your salt intake, your dairy intake, which should be restricted, your dinners should be light. Exercise 3 times a week. If you're exercising a lot, please अपना omega 3 कोई antioxidant जिससे आपकी muscle recovery अच्छी तरह होती रहे. Magnesium now has come up as a great nutrient. It really relaxes your mind. You have a good sleep. It's more of a calming molecule to be added. Oral collagen, I feel, is still it has a long way to go to prove yes it really helps. Oral collagen जब तक आप लेते हैं आपका स्किन का suppleness होता है, but the moment you leave it, then you really can't promise great with the oral collagen yet. So I would really credit your lifestyle, your sleep, your diet, and your genes for a glowing skin. And of course, skin treatments are always there. मैम आपने बीच में सॉल्ट इंटेक की भी बात की थी, तो ऐसा कहते हैं कि शुगर इंटेक अगर आप शुगर भी ज्यादा ले रहे हो तो भी वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है. So I consider all whites to be bad. Your sugar, Okay. your salt, your rice. Rice can be controversial, and your dairy product. Okay. Sugar causes a lot of body inflammation, gut inflammation. Anything that causes inflammation in your system will cause you aging, right? Anything that spark insulin rise in your body will cause aging. Insulin causes aging. आपका बहुत ज़्यादा refined sugar intake, मैदा intake, प्रोसेस्ड फूड इंटेक, चीज इंटेक, डेयरी इंटेक, ये सारे आपके गट को बहुत इन्फ्लेम करता है. सॉल्ट इंटेक, शुगर इंटेक, स्पेसिफिकली पोस्ट इवनिंग टाइम्स, I think by the age of 30, 35, one has to be a little mindful to take it.
Ma'am, I've heard that there is no need to use face wash again and again. Only water is enough for your face. So is it right? नॉट एग्जैक्टली अनलेस Okay. सर्टिल आपका स्किन बैरियर बिल्कुल ही खराब हो चुका है, बड़े एक्टिव्स आपने यूज कर रहे हैं, तो Hmm. आप प्लेन वाटर से सिर्फ रिकवरी टाइम दे रहे हो। फेस वॉश का कॉन्टैक्ट आपके स्किन पे हार्डली 1 मिनट भी नहीं होता, 30 सेकंड Hmm. 40 सेकंड होता है। उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ हद तक माइल्ड एक्सफोलिएशन देते हैं, जो आपकी स्किन को पूरे दिन की डस्ट, धूल, पॉल्यूशन, भागदौड़ के बाद आपको Hmm. चाहिए होता है। ओनली यूजिंग वाटर, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ अ मिथ नाउ इन इंडिया। इतने अच्छे कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स आपके आ गए हैं, हर तरह के फेस वॉशेस हैं। यू हैव Hmm. जेल फॉर्म, फोमिंग फॉर्म, ग्रैन्यूल्स वाले, सेंसिटिव स्किन के फेस वॉशेस वो भी आते हैं, इसमें लैदर नहीं फॉर्म होता। सो Hmm. व्हाई शुडंट वी यूज इट? सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट मिथ। एक और स्किन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे होती है, स्किन में पोर्स क्लॉग हो जाते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है और फिर उसको कैसे क्योर किया जा सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पोर्स का मतलब समझना चाहिए, वो Hmm. आपके नेचुरल स्किन की इंटेग्रिटी है। Okay. पोर्स एक नेचुरल फॉर्म ऑफ स्किन होता है, ठीक है? उसको हमें क्लोज या फिर ओपन करने का हमारे पास कोई मेथड Hmm. नहीं होता। जेनेटिकली आपके पोर्स का साइज कितनी बार डिफाइंड होता है। इफ योर मदर हैज अ बिग पोर स्किन, यू विल आल्सो Hmm. एंड अप हैविंग। मेल्स में पोर स्किन जो होती है, जो पोर्स होते हैं काफी प्रोमिनेंट होते हैं। पोर्स होते क्या है? आपकी स्किन में नॉर्मली सीबम बनता है। जो सीबम होता है वो सरफेस तक इस पोर के थ्रू आता है। वो एक तरह का एक डोर है। Hmm. इट इज़ रिक्वायर्ड। आपको उस पोर्स की क्लींजिंग करनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। तभी हम फेस वॉश दिन में 2 बार आपको Hmm. कहते हैं करें, इससे आपके पोर्स क्लीन रहते हैं। हफ्ते में अगर आप 2 बार रेटिनॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, Hmm. अगेन आपका पोर्स का एक्सफोलिएशन अच्छा हो रहा है, बिकॉज़ अंदर से बार-बार जो सीबम आता है, इन Hmm. पोर्स को क्लॉग कर देता है। Okay. आपके स्किन की डेब्रिस जो होती हैं, इस पोर्स के थ्रू बाहर निकलनी चाहिए, वो Hmm. कभी-कभी उसको क्लॉग करती हैं। जो कि 13-14 इयर्स के बच्चों में देखने को मिलता है। आप 14-15 साल के टिपिकल टीनेज को देखेंगे तो छोटे-छोटे ग्रेड 1 Hmm. Hmm. कॉमेडोन्स, Hmm. कभी-कभी मदर्स उनको पार्लर ले जाती हैं कि हम ब्लैक हेड्स रिमूव कराने जाना है, Hmm. व्हिच इज़ अगेन अ रॉन्ग थिंग टू बी डन। लेट देम बी। पोर्स की आपको क्लींजिंग करनी चाहिए पोस्ट 30। इफ द पोर्स आर ट्रबलिंग यू, और 25 पोर्स आर ट्रबलिंग यू, देन यू हैव मल्टीपल लेजर्स ट्रीटमेंट टू मेक द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द पोर्स बेटर। इफ आई टॉक अबाउट कोरियन स्किन केयर, आजकल सोशल मीडिया पे इतना ट्रेंड कर रहा है कि एवरी पर्सन इज फॉलोइंग दैट ट्रेंड। तो वो इतना ज्यादा इफेक्टिव कैसे है? उसके अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स है जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स में नहीं है, जिससे उसमें उन प्रोडक्ट्स को यूज करने से इतनी ग्लो आ रही है? I think it's not the Korean products which are effective, it's a social market which has suddenly become very effective. Koreans always had a beautiful skin. हम्म, आप कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट या कोरियन फेशियल कराने से आप कोरियन नहीं बनेंगे। सो देयर concept is more of adding of a natural ingredient, okay. rice water and हम्म, all that, and multiple layers of skin regime. So they have been very conscious about their skincare since ages. So like European have been always considered to be little upfront with the fashion thing. हम्म, Koreans have been always considered to be upfront with their skincare. It's just, the world has become very small. The accessibility of any world culture is very easy for us. That's how, they have become very famous. उनके नाम के जो mask, अगर आप Korean mask अपने face पे लगाएंगे, it will give you that 1 or 2 hours of suppleness. हम्म, But don't expect आपकी skin उस facial से convert हो जाएगी. Their regime is multiple layers, too much of skincare, and they already have very beautiful skin. Even if a Korean lady is not going for skincare, they have a beautiful skin. We need what we need, we have it. With any treatment, आपकी genetics नहीं बदलेंगे. I mean, it's more of a hype. I hope it live up to it, but उसके नाम के इतने products बनने लगे हैं, which is quite misleading to the हम्म। normal public also. It's been advised to take 8 glasses of water per day. Your body needs water for that healthy and glowing skin. So how will you recommend it to our audience to take that amount of water in a day? So 8 glasses minimum one should take. Now again, it depends on your structure, your lifestyle, your male or your female. आप कितना बाहर जाते हैं? Some a lady completely at home, no physical exercise, 8 is maximum she should take. There is no point she should complete take gallons and gallons of water. Overhydration of kidney can be also dangerous. You're not Okay. supposed to take 3 to 4 liters if you actually do no exercise or something like that. जितना आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ले रहे हैं, जो कि कहाँ तक 8 से 11 ग्लास के बीच में एक
एवरेज बता रखी है, उससे आपका सपलनेस ऑफ द स्किन, आपका हाइड्रेशन लेवल ऑफ द बॉडी, मोर ऑफन आपका जो टॉक्सिन लेवल्स होता है बॉडी का, वो वॉश आउट हो जाता है। दैट्स अ होल पर्पस। अगर आप मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, आप सनस्क्रीन नहीं लगाते और आप सोचेंगे बस मैंने 3 लीटर ऑफ पानी पी लिया, ये हो गया। Adding water in your regime, enough water in your regime is one of the healthy thing you do. But there are of course many things along also to be done to make your skin hydrated. Is it necessary to use that CTM method, that is cleansing, toning, and moisturizer daily? CTM method आपका एक routine बन जाता है. You get into a routine. Of course, if you're cleansing every day, you are providing that complete exfoliation your skin needs. With the toner, you are maintaining the pH balance जो कभी कभी फेस वॉश से बिगड़ जाता है. एंड मॉइस्चराइजर जो आप दिन में 2 बार लगा रहे हैं. सीटीएम एटलीस्ट अगर आप 2 बार नहीं कर सकते, आप एक बार भी करें. यू आर प्रोवाइडिंग दैट मिनिमम thing, or you are doing your minimum effort which your skin needs, and you get into a habit. It's like training yourself. This is something minimum I need to do for your skin. Actives मत लगाओ, hyaluronic नहीं लगा रहे, retinoid से लगा रहे, ये तो करो अगर स्किन अच्छी चाहिए तो. In between, you have mentioned about sunscreen. So, how sunscreen plays an important role in our routine? एंड उसमें ऐसा होता है कि SPF होते हैं 30, 40, 50. सो बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि कौन सा SPF हमें यूज करना चाहिए. कि ऐसा लगता है ना 50 यूज कर लेंगे तो हमारी स्किन को और नरिशमेंट मिल जाएगा या हमको स्किन एक्सपोजर से बचा देगी. तो वो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा SPF जरूरी होता First and foremost, it is sunscreen, not sunblock. सनस्क्रीन एक स्क्रीन जो आपको सन के यूवीए यूवीबी से प्रोटेक्ट करती है. देयर आर 3 लेयर्स, यूवीए यूवीबी यूवीसी. यूवीसी ओजोन से आपकी काफी हद तक छन जाती है, बट अब विद दिस पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, यूवीसी भी कुछ कुछ जगह पे अर्थ पे आती है. यूवीए कॉजेज लॉट ऑफ एजिंग, वेयर एज बी कॉजेज लॉट ऑफ अदर डैमेजेस. सनस्क्रीन का मेन पर्पस होता है आपकी बॉडी को जो भी सन से डैमेज हो रहा है उससे आपको प्रोटेक्ट कर रही है. अब ये प्रोटेक्शन आप दिन में एक बार लगा के सोचें, अब मैं 8 घंटे तक बाहर हूँ, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. मोर देन फोकसिंग मोर ऑन SPF, your reapplication of the sunscreen is important, which has to be every 3 hours if you're outside है. again. So this 2 finger proof आपको आइडली आपका सनस्क्रीन यूज होना चाहिए, और अगर आप नेक का करें देन there has to be around 3 fingers to be used. Now SPF नंबर पे बहुत कंफ्यूजन होता है. सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30, 40, 50. 30 मीन्स ये आपको 30% ज्यादा प्रोटेक्शन देगा जो आपकी स्किन नेचुरली देती है. आपकी स्किन में तो नेचुरली कुछ करती है. जब 30 से आप 50 जाते हैं ना, तो वो मार्जिन बहुत ह्यूज होता नहीं है एज पीपल बिलीव. दैट देयर आर टाइम्स पीपल थिंक कि SPF 100 हम लगा लिए, हमने तो हो गया हमारा. आप 30 लगाएं, 50 लगाएं. इट डिपेंड्स आपका आउटडोर एक्टिविटी थ्रू एंड थ्रू इन सन कितना है. अगर आप बीचेस में जा रहे हैं हॉलिडे करने, 50 उठाइए, 70 उठाइए, स्प्रे फॉर्म बॉडी पे जरूर लगाइए, बट उसको रिपीट करिए. अगर आप बीच पे हैं, आप दिल्ली जैसे नॉर्थ इंडिया में हैं, अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने घर पे 30 SPF निकाल लगा के सुबह जाइए. यू माइट नॉट नीड इट बिकॉज यू कंप्लीटली इनसाइड द ऑफिस. अगर आपकी चेयर विंडो के साइड है, आपको ऑफिस में ऐसी चेयर मिली हुई है, आपने सुबह 8 बजे SPF 30 लगाया, 1 o'clock reapply it because your windows don't provide any kind of ultraviolet protection. And then these lights are also, blue lights are also very dangerous. If you are on laptop throughout the day, then again go for 2 times of sunscreen. धूप में जाना है, सनस्क्रीन से बचना है. सनस्क्रीन आपकी सिर्फ टैनिंग के प्रोविजन के लिए नहीं है. आपकी स्किन पे जो अर्ली साइन ऑफ एजिंग, छोटे छोटे ब्लेमिशेस, ब्लैक स्पॉट, रिंकल्स, डल स्किन, वो सारे आपके सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन आपको तभी मिलती है अगर आप सनस्क्रीन बड़े रेगुलरली फ्रॉम द एज ऑफ 20, 18 या 25 से लगा रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन योर आउटडोर. किड्स प्ले आउट, दे हैव आउटडोर नाउ प्लेज. नाउ टेनिस जैसा गेम हुआ, गोल्फ हुआ, उसमें बच्चे को आइडली आपको एजुकेट करना चाहिए. बच्चों के लिए सेफ सनस्क्रीन होते हैं, दैट यू हैव टू अप्लाई एंड गो एंड प्ले योर गेम. देयर इज अ मिथ आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ मदर्स दैट कि मेरे बच्चे की तो बहुत सेंसिटिव स्किन है, मैं कैसे लगाऊं. जैसे जो 8 से 10 इयर्स के बच्चे होते या हैं कि उनको सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए क्योंकि
सेंसिटिव बम्प्स आ जाते हैं या पिंपल्स हो जाते हैं, तो अगर उन बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन नेसेसरी है और अगर है तो कौन सी ब्रांड की उनको यूज करनी चाहिए? सो बच्चों के लिए स्पेसिफिक फिजिकल ब्लॉक आता है जिसमें जिंक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। सो एक सनस्टॉप 19 करके है, ठीक है? शैडोज़ किट करके है, सोलर डी किड्स करके है और हम इंटरनेशनल ब्रांड्स में जाएँ तो कूला सनस्क्रीन है। दे आर वेरी गुड इन curating a sunscreen only for the kids where there is ओके। only zinc जिसमें ज़िंक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आपको बच्चों को इनफ सनस्क्रीन मिलेगा एंड उसको सन प्रोटेक्शन विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हार्म टू हिज और हर सेंसिटिव स्किन इस प्रोविजन इज देयर। आजकल मैम सबसे ज़्यादा स्किन पे ना पिंपल्स की प्रॉब्लम हो गई है। एक्ने मतलब कई तरह का भी हो जाता है, स्मॉल बम्प्स हो जाते हैं या किसी में व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है, वो पिंपल्स हो जाते हैं। तो ऐसे कितने टाइप्स के पिंपल्स होते हैं और फिर अलग-अलग पिंपल्स के लिए हमें क्या चीज़ें अप्लाई करना चाहिए? सो सी पिंपल्स की कैटेगरी है अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं ग्रेड 1 2 3 4। हुँ, स्टार्टिंग जो पिंपल का होता है वो होता है आपका कॉमेडोन्स जिसको आप लोग ब्लैक हेड्स या व्हाइट हुँ, हेड्स के दौर पे आप कहते हैं और यूजुअली आई हैव सीन स्कूल गोइंग गर्ल्स को अगर होता है तो मदर्स पार्लर्स में जाके रिमूव करवा हुँ, लेती हैं उसमें आपको एंटीबायोटिक्स का कोई ज़रूरत नहीं होता। दूसरा आते हैं पैप्यूल्स जब ये कॉमेडोन्स थोड़े डीप होते हैं उसमें पैप्यूल्स थोड़ा वो जो उठा हुआ होता है वो स्किन कलर का हुँ, होता है। फिर होता है पुस्ट्यूल जिसके अंदर पस बनने लग जाती है। हुँ, पुस्ट्यूल मीन्स अ पस जिसमें आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। ओके, फोर्थ फॉर्म जो होता है नोडुलोसिस्टिक एक्ने इसमें 2 एक्नेस के बीच में ही एक चैनल बन जाता है हुँ, और ये यूजुअली हील होता है विद स्कार। मेनी टाइम्स इसका ओरिजिन एज वाइज और आपके लाइफस्टाइल वाइज होता है, जेनेटिक बहुत बड़ा रोल होता है जैसे मैंने बताया। जब नॉर्मल कॉमेडोन्स होते हैं, सिर्फ सैलिसिलिक एसिड बेस हुँ, सीरम्स या फेस वॉश से उसको छोड़ दो या कॉमेडोन एक्सट्रैक्शन हम लोग डर्मैट्स करते हैं अपने क्लिनिक पे करा जा सकता है। टैपल्स में आपको थोड़ा-सा डीपर जाना होता है। पेशेंट को हो सकता है कुछ माइल्ड आपको टैबलेट्स देनी पड़े जिससे बार-बार ना हो। थोड़ा-सा आप समझाइए अपना लाइफ़स्टाइल में डाइट मॉडिफाई करें। हुँ, फिर जब आपका पुस्टूल आता है देन यू नीड oral medication for sure and yes topical antibiotic also and maybe hormonal profile to be checked. Fourth ओके, form nodulocytic, you have to counsel a patient, it might heal with a scar. हम लोग अब scar वाली situation में आ गए हुँ, हैं. Longer antibiotic, detailed counseling about the lifestyle, multiple serums, gut health, hormonal profile, everything has to be हुँ, calculated. हुँ, एक्ने का ट्रीटमेंट ग्रेड 1 का हो, कुछ भी हो, आई वुड सजेस्ट उसको पार्लर बेस्ड मत रखिए क्योंकि जो आप ऊपर छोटा-सा एक बम्प देखते हैं, उसका डीप डाउन उसकी हुँ, जो पैथोफिजियोलॉजी है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एक्ने इतना सिंपल होता नहीं है एज़ पीपल बिलीव। It can be social trauma to many teenagers. Somebody who's 18, 19 is worried, just take them to a dermat and हुँ, don't just pick over the counter salicylic acid and face wash. If हुँ। I'm telling salicylic acid, there are concentration required. आपको 2% चाहिए, 3% चाहिए. Let your dermat take a call हुँ। on that. जैसे हमने बीच में भी बात करी थी कि लोग सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी फॉलो कर लेते हैं और उसमें देखकर और सोशल मीडिया लाइफस्टाइल भी ऐसी हो गई कि अगर उन्हें कहीं पार्टी में जाना है कुछ भी तो दे जस्ट पॉप द पिंपल्स और दे यूज पिंपल पैचेस टू कवर इट। सो इज इट सेफ टू यूज दैट पिंपल पैचेस और पॉपिंग इज आल्सो सेफ और नॉट? Pimple patch, yes, has some science behind it. You know, वो उस specific area को slowly heal करता रहता है हुँ, and काफ़ी हद तक as I said, socio-economically पेशेंट को बड़ा बेटर फील होता है कि इफ यू हुँ, हैव अ बिग पार्टी और एक हुँ, पिंपल निकल आया है, उस 2 घंटे में आपका डॉक्टर भी कुछ नहीं कर हुँ, पाएगा, तो एक पैच लाइक एक कीमोफ्लाज जैसे आप उसपे मेकअप करके जा सकते हो, वो हील भी कर रहा है। पॉपिंग इज़ स्ट्रिक्टली नो, 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 नो बिकॉज़ ऑलरेडी आपको एक इंजरी हो चुकी है, हुँ, हार्मोनल इंजरी हुई जिससे आपको एक्ने हुआ, आपने उसको पियर्स करके एक और इंजरी कर दी है। हुँ, तो आपने बेसिकली अपने डॉक्टर को 2 काम दे दिए हैं। हुँ, अब आप मेरा एक्ने भी ठीक करिए और जो मैंने एक्ने के बाद अब मैंने अपना कोई इंजरी दी है ना, हुँ, आप मुझे भी ठीक करिए। पिंपल पॉपिंग इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। डोंट टच, डू नॉट टच देम एट हुँ। एनी कॉस्ट। पिंपल्स की बात अगर करें जैसे आपने बोला कि वो स्कार्स भी हो जाते हैं उसके बाद या तो फिर किसी-किसी को पिंपल्स के बाद जो गड्ढे भी हो जाते हैं उसके लिए माइक्रो नीडलिंग भी होती है। तो बहुत लोग उसको कराने से डरते भी हैं कि ये पता नहीं सेफ होगी या नहीं, इससे सही होंगे क्या नहीं? तो उस चीज़ के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो नीडल का नाम सुनते सब डर जाते हैं। हुँ, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी और हुँ, माइक्रो नीडल। एज़ द नेम सजेस्ट माइक्रो। नीडल को पोक नहीं कर रहे, नीडल हुँ, सिर्फ टच हो रही है।
All needles are not bad. In fact, needles are never bad. They have been meant to treat you or to give you something. Acne scars और post acne scars the same thing. जो गड्ढे आप कह रही हैं वो scars ही होते हैं. So acne ऐसे था, आपका गड्ढा आपका ऐसा बन गया क्योंकि नीचे का कोलेजन डैमेज हो गया. टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, एंटीबायोटिक नहीं मिली. एक्ने बहुत डीप होता है, वो ट्रीट ऐसे स्कार बन के हुआ है कि कोई भी सीरम से ये आपकी स्किन उठने नहीं वाली है. जब तक मैं नीचे कोलेजन नहीं बनाऊंगी, ये स्किन नॉर्मल नहीं होगी. Microneedling radiofrequency is the most acceptable, it's the most defined FDA approved treatment for the acne scars. Grade 3, grade 4. Multiple treatments लेनी पड़ती हैं. डाउन टाइम सिर्फ 6 घंटे का या फिर 1 दिन का है. इतनी अच्छे हमारे पास नमिंग क्रीम्स आ चुकी हैं. आप 40 मिनट्स नमिंग क्रीम लगाएं, यू डोंट इवन फील द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन. द नीडल्स डोंट पोक, दे जस्ट टच योर स्किन. उनका पर्पस होता है आपकी स्किन को हल्की सी इंजरी देना और फिर उस पे लेजर छोड़ देना. जब तक आप सस्टेन एक इंजरी नहीं दोगे, आपकी स्किन रिकवर नहीं करेगी. वो रिकवरी ही कोलेजन बना के होती है, जिससे आपका धीरे-धीरे स्कार उठता है. No treatment of scar should be aimed in fixing the scar completely. That's why it's called a scar. Marks तो हमेशा पूरी तरह चले जाते हैं. Visibility of scar 5 या 10% रह सकती है, but कभी वो इतनी कम होती है that you feel so good, आपका 80% of scar खत्म हो गया after 4 or 5 sitting. So 6 घंटे का डाउन टाइम लेना है. आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है अपने डर्मेट को. It's one of the best treatment for the acne scars. अब अगर मैं स्किन डिजीज की बात करूं तो किसी किसी की बॉडी पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं जिसको हम विटिलिगो भी कहते हैं, और बहुत लोग समझते हैं कि ये कंटेजियस होते हैं कि एक से अगर इफ अ मदर इज हैविंग एंड इफ शी इज कंसीविंग तो उसके बच्चे को भी वो चीज हो जाएगी. तो क्या ये चीज कंटेजियस होती है, और अगर और बेस सबसे पहला तो क्वेश्चन, ये चीज होती कैसे, ये डिजीज कैसे होती है? So the social stigma for white patches will be there in Indian society and has been there since ancient time, because we are color of skin people, we are little brownish, so हम पे white patch बहुत ज़्यादा उभर के दिखता है. If you seen western world में वहाँ पे vitiligo का visibility भी होता है, but stigma काफी हद तक कम है. And I think as a dermat हमारी community पिछले बहुत सालों से इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है to create a awareness about vitiligo. एक पैच होता है लाइट कलर, एक होता है व्हाइट कलर. सो मेरे पास ओपीडी में बहुत बार पेशेंट एक लाइट कलर पैच को लेके भी बहुत पैरानॉइड होके आते हैं, जिसको हम ब्लू लाइट से चेक करके वी गिव देम अश्योरेंस दिस इज नॉट विटिलिगो. Now coming back to vitiligo, first and foremost, it's not a contagious disease, it's an autoimmune thing. Autoimmune means world की 1% of population को actually ये है. अगर 100 करोड़ हैं तो 1 करोड़ बंदों को ये होगा. ये पॉसिबिलिटी है. ये हम जब इतनी मल्टीपल आप स्टडीज करते हो, उससे आप ये कहाँ कहीं तक ये फिगर आप लेके आते हो. 1% ऑफ पॉपुलेशन कैन हैव विटिलिगो, और ये किसी को भी हो सकता है. आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, एट एनी टाइम ऑफ द एज. छोटे बच्चों में होता है. वी हैव सीन विटिलिगो हैपनिंग एट द एज ऑफ 50 एंड 60 आल्सो. समटाइम्स इट कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड. Many times it's stress induced because it's autoimmune. आपकी बॉडी आपके सेल्स के अगेंस्ट ही डैमेज करने लगती है. आपके टी सेल्स, आपके बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को ना मार के आपके पिगमेंट सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. उसका वाइड स्प्रेड बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा है. वो थम भी जाता है, वो फैल भी जाता है. It's not contagious. Vitiligo is not contagious. It's autoimmune. So if the mother has it, there is a possibility of 12 to 18% that the child might inherit it. Child might have those genes. अब वो जीन्स उस बच्चे में किस एज पे ट्रिगर हो, वो बताना बहुत मुश्किल है. एंड बाकी 85% ऑफ द पेशेंट्स में हमने विटिलिगो की फैमिली हिस्ट्री ही नहीं देखी है. As I said, stress can be a very strong factor playing to it. So 30, 40 years back, we did not have thyroid so commonly, in young individuals. Now, out of 10, I see at the age of 30, 7 people have thyroid. So जिनको थायराइड का इशू होता है, उनमें हमने देखा विटिलिगो कोएक्सिस्ट कर सकता है. नाउ दिस इज आल्सो स्टडी. आई एम नॉट सेइंग आपको थायराइड है तो आपको विटिलिगो होगा, बिकॉज आपके अंदर ऑटो इम्यूनिटी की एक ससेप्टिबिलिटी है. विटिलिगो की ट्रीटमेंट्स हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विटिलिगो का फैलना हमको रोकना होता है. एक बार नया लीजन आना बंद हो गया, देन more than half the battle is won. Then you only have to generate new pigment, which with
so much of advance in cosmetology, in dermatology, we are able to achieve it. इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी थेरेपीज भी होती हैं कि अगर हम लाइट थेरेपी लेंगे तो उससे पैचेस कम हो जाएंगे। तो ऐसी कौन सी थेरेपीज होती हैं? So there are two types of therapies in vitiligo. The oldest one is PUVA, other is narrowband therapy. PUVA एक ऐसी होती है इसमें टैबलेट आप पॉप अप करते हो, धूप को एक्सपोज करते हो, तो वो टैबलेट एक ऐसा आपकी बॉडी में धूप की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं कि वो पिगमेंट कॉज करती है। तो दैट कैन बी, उसमें थोड़ा सा कॉशियस बहुत ज्यादा रहना पड़ता है। सेफर ऑप्शन इज नैरो बैंड थेरेपी, ठीक है? एनवीबी थेरेपी जिसको कहते हैं, जिसमें एक पूरा चैम्बर होता है, नहीं तो टारगेटेड नैरो बैंड थेरेपी होती है, जहाँ-जहाँ आपको व्हाइट पैचेस हैं, वहाँ पे हम पिगमेंट ओरिजिनेट कराते हैं। एंड एक्साइमर लेज़र ऑफ कोर्स दे आर द न्यूअर थिंग, बट I still have lot of my trust in narrowband therapy. So they have been providing amazing results, very safe for the children also, can be used in the females who are lactating also, and it's not very cumbersome. आपको हफ्ते में 2 या 3 बार लेनी होती है। So is there any precautions to take while having those medicines like ये नहीं खाना चाहिए या इस चीज को अवॉइड करना चाहिए? So vitiligo patients may what we ask patient is just avoid your sour food when it's active. अगर आपको Okay. नया lesion नहीं आ रहा, you are free to have consume anything. When you see the new patches are coming up, something which is very sour, like खट्टी कड़ी हुई, साउथ इंडियन फूड में बहुत इमली यूज होती है, उसमें उसमें इन सब में विटामिन सी कंटेंट, एस्कॉर्बिक एसिड कंटेंट बहुत हाई होता है। सो वी जस्ट आस्क देम टू अवॉइड टू मच ऑफ खट्टा जिसमें बहुत फिज होती है, एप्पल फिज, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, देन specifically khatta fruit. Mangoes can be khatta also, meetha also. Avoid which is very khatta in your diet. And fish and dahi और दूध से vitiligo बढ़ जाता है. No, that there has been documentation of that specific fish which is not even found in Indian coastal area also. So you can have normal dahi, you can have milk, you can have fish whenever you have vitiligo also. The myth about diet and vitiligo is also not very scientific proven. बहुत ज़्यादा खट्टा अवॉइड करिए बस आप। अब बहुत बार ऐसा होता है आपकी स्किन पे रेड पैचेस हो जाते हैं और उसके कारण बहुत इची स्किन हो जाती है, तो वो क्यों होता है? बहुत ज़्यादा जो रेड पैचेस जो इची वाले होते हैं, मोर ओवर इस चीज़ को अर्टिकेरिया कहते हैं। अर्टिकेरिया कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। जो अभी-अभी आया है 6 हफ्ते से अंदर एक्यूट, जो आपको महीनों से चल रहा है उसको क्रॉनिक बोलते हैं, मोर देन 6 टू 8 वीक। इसमें रेड रेड व्हील्स राउंड राउंड ऐसे बनते हैं जिस जैसे लगता है पानी भरा हुआ हो। एंड देन दे सेटल इन फ्यू आवर्स एंड दे आर वेरी इची। एक पैच से दूसरा पैच ऐसा लगता है आपको कंटेजियस कोई डिजीज हो गया कि एकदम से आई एट समथिंग एंड सडनली ऐसा हो गया। बहुत बार इसमें फूड हिस्ट्री काफ़ी वैलिड होती है, स्ट्रेस बहुत वैलिड होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, विंटर्स में वूलन से आपको इरिटेशन होती है तो होता है। वी हैव आल्सो सीन पेशेंट जिनको अर्टिकेरिया होता है, दे इज एसोसिएटेड विद देयर गट इश्यूज। उनको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया उनके गट में होता है, एच पाइलोरी, उसमें वी हैव सीन अर्टिकेरिया क्वाइट प्रेवलेंट। So sometimes we have to also be in touch with their gastro or their general physician to work on the H. pylori infection also. And we ask them to have simple food for a while and check what is triggering it. आपने क्या किया था जो ट्रिगर हुआ है? Sometimes mushroom is a very triggering factor. Wine, too much of grapes, too much of nuts, too much of dairy, cheese in their diet can trigger it. And moisturizer is the key factor to it. देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस और वो ऐसा बोलती थी कि मैं जब भी स्ट्रेस लेती थी तो वो बढ़ता जाता था, तो क्या ये स्ट्रेस के कारण सोराइसिस बढ़ सकता है? So stress and dermatology conditions have been always related. हम लोग जब अपनी रेजिडेंसी कर रहे थे तो there used to be a chapter and we never believed in it so much till the time we started seeing the patients. Psoriasis is a it's not a autoimmune thing. आपकी बॉडी का एक तरह का एक इन्फ्लेमेशन होता है जो आपकी स्किन पे देखने को मिलता है। स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन 17 होता है जो आपकी बॉडी में इतना हाई हो चुका होता है, आपकी स्किन रोज रेप्लिकेट कर रही है, रोज झड़ रही है। 4 लेयर्स रोज बन रही है, 4 लेयर झड़ रही है। सोरियासिस में क्या होता है, एक दिन के अंदर 20 लेयर्स बनने लग जाती है। ओके। बट झड़ेंगे तो 4 या 6 ही ना। तो वो यही कहते हैं कि एकदम से पैचेस बन रहे हैं, हम जितना इचिंग करते हैं पाउडर बनता रहता है, वो स्किन पतली नहीं होती है। द पेशेंट ऑफ सोरियासिस, अर्ली पेशेंट सोरियासिस डोंट अंडरस्टैंड ये है क्या? मैं रोज एक लीजन को मैं ट्रीट कर रहा हूँ बट
बढ़ रहा है, बिकॉज आपकी स्किन उस स्पेसिफिक पार्ट पे बहुत ज्यादा स्किन बनाती है. As I said, stress has been related to skin many issues: vitiligo, psoriasis, urticaria, hair fall, acne, uncontrolled pruritus. आपको पता ही नहीं है itching क्यों हो रही है. Lichen planus. With our lifestyle changing in last 15 years, youngsters at 20, 21 taking so much of stress, which I don't remember at 21, I even thought about it, what I have to do about it. I see all these things so much at the early age. फैमिली हिस्ट्री ऑफ बॉल्डनेस अगर है, फादर को 40 में हुआ, आप 25 में बेटे को देख रहे हो उसकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है. क्यों? नाइट शिफ्ट कर रहे हैं. ही स्लीप्स एट मॉर्निंग 2 o'clock, पूरी रात की शिफ्ट है कि नहीं, कान लीव दैट जॉब. So with their lifestyle changing, we are seeing a shift in our practice also. What we have not seen in our books, which we have not in our practice, we are seeing, we are learning also with changing things. Post COVID, many things have changed. We have seen there has been trigger of many things. आपकी जो hidden genetics भी थी, जो शायद आपको 60-70 में चीज आनी थी, we seeing at 40-50. So yes, stress plays a very big role. Psoriasis can be a very long disease. अब लाइफ लॉन्ग बोलो तो पेशेंट फिर डर जाता है. इसको आप डिजीज ही मत लीजिए. आपको एक टेंडेंसी हो गई है जिसमें वैक्सिंग और वेनिंग फेस होगा. ये बहुत टाइम तक चला जाएगा, फिर कुछ टाइम तक आएगा. सो यू एक्सेप्ट इट एंड देन यू, इट्स इजी फॉर यू टू ट्रीट इट. डोंट कीप फाइंडिंग अ ट्रीटमेंट, ये क्या करूं कि बिल्कुल चला जाए. Vitiligo is one of those. Psoriasis is one of those. Lichen planus is one of those. Now your body has developed a tendency to it, and sometimes it can be sleeping for such a long time कि आपको ये परेशान ही नहीं करेगा. एक सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक अगर मैं लेऊं तो उसको बोलते हैं कि जो ब्राइड होती हैं वो अपने पोस्ट और प्री मेकअप को लेकर या प्री ग्लो को लेके बहुत स्ट्रेस रहती हैं कि मेरी तो शादी है, अब मुझे क्या चीजें फॉलो करना चाहिए जिससे मेरे फेस पे ग्लो आ जाए. तो उनको क्या चीज फॉलो करना चाहिए? um, अगर इफ यू आर गेटिंग मैरिड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये प्रोजेक्ट आपका स्किन केयर का 4 से 6 महीने पहले स्टार्ट होना चाहिए. इफ यू जस्ट वेकअप अ मंथ बिफोर कि अब मुझे कुछ करना है, आई थिंक इट्स प्रिटी लेट. 6 months प्रायर सबसे पहले अपना एक तो लेजर हेयर रिडक्शन का अपना प्रोसेस आप स्टार्ट कर दीजिए. इनफैक्ट दैट शुड बी 8 months प्रायर. You should stop going for those waxing and ancient way of removing your hair. Then sit with your dermat and make a skin regime. बिकॉज ये कोई कंपल्सरी नहीं है आपकी स्किन regime फर्स्ट टाइम पे आपको क्लिक हो जाए. हो सकता है आप विटामिन सी आपको टॉलरेट ना हो, आप ग्लाइकोलिक एसिड ना आप ठीक से लगा पाएं, आपको थोड़ा सा रैश हो, सेंसिटिविटी हो, तो देयर इज इनफ टाइम टू चेंज एंड स्टिक टू अ न्यू वन जो आप शादी से 4 महीने पहले तक फिर उसको नहीं शिफ्ट किया जाएगा. Coming to the treatment, laser toning, which has been a game changer in the world of aesthetic in last 10-15 years. Go for laser toning. It's a tone of a skin which is made even tone of a skin with the help of a laser. So your parlor visit for bleaching is completely obsolete. आप bleaching कराना भूल जाएंगे एक बार आपने laser toning पे आप switch हो गए. अगर आपको acne है then carbon Q switch और chemical peels timely start करवा दीजिए. 6 महीने में आपको क्यों बता रही हूँ, एटलीस्ट आप 4 सिटिंग तो लेंगे अगर आप 6 हफ्ते में एक बार ले रहे हैं. अगर आपको एक्ने स्कार्स है पुराने, तो आप MNRF की सिटिंग 1 in 2 months स्टार्ट करिए, या माइक्रो नीडलिंग या डर्मापेन या मेसोथेरेपी. ओपन पोर्स का इश्यू हो रहा है, आपको लगता है मेरे ओपन पोर्स है, मैं मेकअप व्हेन आई डू माय मेकअप आई डोंट फील वेरी गुड अबाउट दैट. अगेन इन दैट केस आपके MNRF एंड CO2 लेजर शुरू होने चाहिए. ठीक है. Medifacials, start getting medifacials. So medifacials don't have a very strong medical background, but they are skin hydrating treatment which have actual real ingredients to be used. उसमें glycolic acid, lactic acid और salicylic acid based हाइड्रेशन थेरेपी होती है जो स्किन के सुपरफिशियल एस्पेक्ट को डेफिनेटली ट्रीट करता है. इसमें नीडल्स नहीं होता है. 45 to 1 hour होता है. बहुत अलग अलग तरह के मेडिफेशियल्स होते हैं जिसको हाइड्रोफेशियल भी एक वर्ड में आप बोला जाता है. अब आप ऑक्सीजिनियो करा रहे हो, उसमें फायर एंड आइस करा रहे हो, सिर्फ हाइड्रोफेशियल करा रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो आपको शादी से 3 महीने पहले स्टार्ट करने चाहिए. एंड यस, योर फोकस फॉर द फॉर योर स्किन हैज टू बी नॉट ऑन द स्पेसिफिक डे, क्योंकि शादी वाले दिन आपको कितना एक्ने भी हो, आप मेकअप से सब छुप जाता है. बिफोर वेडिंग एंड आफ्टर वेडिंग व्हेन यू एक्चुअली मेकअप विल बी ऑफ, योर स्किन हैज टू लुक ग्रेट. In that case, skin boosters are again a new thing which all the brides are getting it done. इसमें निडल यूज होता है, आपको शादी से महीना 2 महीने पहले कराना चाहिए.
very mild concentration of hyaluronic acid. Boosters are not filler. They only boost a superficial aspect of the collagen, giving your skin hydrated, supple, fresh look. केमिकल पीलिंग जो वर्ड है विच इज वेरी ट्रेंडिंग नाउअडेज, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है और ये हर स्किन के लिए सूटेबल रहता है या नहीं? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, चलो ट्रेंड तो कर रहा है, बट बहुत पेशेंट को स्कैरी लगता है पील, आप हमारा स्किन पील कर दोगे। आपको इतना समझना चाहिए आपकी स्किन डेली एक्सफोलिएट हो रही है, 2 या 4 लेयर रोज झड़ रही है। केमिकल एक्सफोलिएशन और केमिकल पील एक मेडिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम 4 से ज़्यादा 1 या 2 लेयर खुद रिमूव करवाते हैं। इट्स लाइक एडिंग अ बूस्ट टू योर नाइट सीरम्स। अगर आप रात को एक रेटिनोइक एसिड 1% लगा रहे हैं, बट मैंने आपकी केमिकल पील 4 या 10% पे कर दी, तो अगले 1 हफ्ता आपको 1% की पील से भी छुट्टी लेनी है, आपको वो नहीं लगाना, बिकॉज़ मैंने एक सस्टेन्ड मेडिकल फॉर्म ऑफ आपकी स्किन की सुपरफिशियल एस्पेक्ट को थोड़ी-सी इंजरी दी है। जब तक आप थोड़ी इंजरी दोगे, नीचे से वो रेप्लिकेट करना शुरू नहीं करती है। Then you see a new hydrated skin which is more fresh looking. आई बिलीव इट्स मेंट फॉर ऑल, बिकॉज अब इतनी तरह की पील आ गई हैं। अगर आपको रेटिनॉइड पील चाहिए या येलो पील चाहिए, डाउन टाइम है 5 दिन का, बट योर स्किन लुक्स फैब आफ्टर दैट। आपको आज ही शाम को किसी पार्टी में जाना है, देन आई एम गोना गिव यू अ पार्टी पील जिसमें कोई डाउन टाइम नहीं है। इट इज मोर ऑफ अ विटामिन सी बेस, अगेन इट गिव्स यू अ ग्लो। आपको एक्ने है तो अगेन आई एम गोना टेल यू 4 और 5 डेज का आपका स्किन थोड़ा ड्राई रहेगा, I'm gonna give you maybe सैलिसिलिक एसिड और मैंडेलिक एसिड का मैं कॉम्बिनेशन देना चाहूँगी। आप बोलेंगे मुझे डलनेस है स्किन में, आई विल आस्क यू, यू ओके फॉर 4 to 5 days? Then I'm going to give you a low dose of TCAP. So there are so many peels that it's meant for everyone. आपको पिगमेंटेशन के लिए चाहिए, ओपन पोर्स के लिए चाहिए, एक्ने के लिए चाहिए, आपको पिगमेंटेशन आफ्टर एक्ने के लिए चाहिए, सिंपली ग्लो के लिए चाहिए। आपको अपनी इंडिकेशन बस ज़ाहिर करनी है। मेरे ख़्याल से हर डर्मैट के पास हर तरह की पील्स एंड दे आर फैबुलस। पील के बाद का डाउन टाइम समझिए, धूप में नहीं जाना, मेकअप नहीं करना, स्किन थोड़ी-सी पील हो रही है, इट्स फॉर योर बेटरमेंट। मॉइस्चराइज़ करिए, अपनी डे टू डे एक्टिविटी करिए। सोशल कमिटमेंट्स कैन बी अ इश्यू फॉर 3 to 4 days, यू कैन नॉट डू मेकअप, डोंट बी आउट एंड अबाउट, बहुत ज़्यादा जिम मत करिए, स्वेटिंग मत करिए, बट पील्स आर fab. They are like my favorite treat. आपने तो ये बोला कि इंस्टेंट ग्लो के लिए भी ये चीज अच्छी होती है, तो इसके कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी रहते होंगे? Peels are always for a long term benefit. हम आपकी स्किन को वो दे रहे हैं जो आपके रात के जो सीरम्स हैं वो थोड़ा-थोड़ा दे रहे हैं। पील्स इज़ लाइक अ बूस्टर टू इट। आप सोचिए आपने एक मैन्योर डाल दिया है एक प्लांट के अंदर, जैसे थोड़ी-थोड़ी हम मिट्टी डालते हैं, आपने एक साथ एक मैन्योर डाल दिया जिससे एक आपकी स्किन के ट्रीटमेंट को बूस्ट मिलेगा। जो आपके नाइट के सीरम्स है उसका एब्ज़ॉर्प्शन डबल हो जाता है आफ्टर गेटिंग अ पील डन। जैसे अलग-अलग स्किन के लिए कौन-सा पील सबसे बेस्ट रहेगा? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप। जिसकी बहुत ऑयली है, उसमें मैं मैंडेलिक, सैलिसिलिक पील प्रेफ़र करूँगी। जिसकी बहुत ड्राई है, देन प्रोबब्ली इन दैट केस ओनली यू नो ग्लो पील इज़ गुड इनफ। जिसको है कि मुझे एक्ने है बट बहुत ज़्यादा डाउन टाइम नहीं चाहिए, उसमें मैं लैक्टिक एसिड पील करना चाहूँ। जिसको पिगमेंटेशन है उसमें मैं रेटिनॉइड करना चाहूँगी। जिसको थोड़ा डलनेस का इश्यू है उसमें मैं शायद माइल्ड टीसीए पील करना चाहूँगी। मेलाज़्मा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पील्स करी जाती हैं। कॉस्मेलान पील उसमें 10-15 दिन का डाउन टाइम होता है। बट लेकिन रिज़ल्ट्स हर पील के, हर स्किन टाइप के सबके अलग होते हैं। फॉर वेरी ड्राई स्किन दैट इज़ अ थिंग ऑफ नो नो। यू माइट हैव टू contemplate, do you want to do exactly peel on this one or you want to just do hydra treatment, make the skin prepared so that the peel can be done. अब इसको लेके कई मिथ्स भी, जैसे आपने बोला कि सब लोग पील सुनते से ही डर जाते होंगे। अब किसी को एक्टिव एक्ने है, तो क्या केमिकल पीलिंग कराना Of सेफ course it है? should be done. Of course it should be done. एक्टिव एक्ने पे अगर आप पील करते हैं और जो आप एक्ने के सीरम लगाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन बहुत बेहतर होता है। समटाइम पील्स डज सो मच ऑफ बेनिफिट। कितनी बार होता है कि टैबलेट पेशेंट नहीं ले सकता, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है। I have seen fabulous results with peels and serum in the cases where I have been unable to give tablets to the patient also. अब जैसे केमिकल ये सेशन हो गया, तो इस एक सेशन में कितना टाइम लगता है और ये क्या पेनफुल भी रहता है या नहीं? केमिकल पील करने में आपको 10 से 15 मिनट से ऊपर का वक्त नहीं लगता है।
आपको पील, डिपेंडिंग ऑन द पील अगेन, वो स्ट्रॉन्ग पील है, आपको थोड़ी सी बर्निंग और स्टिंगिंग सेंसेशन जरूर होती है. इट्स नॉट पेनफुल, वी आर नॉट पीलिंग ऑफ योर स्किन, हम आपकी स्किन नहीं छिल रहे हैं, हम आपका मेडिकल वे में स्किन एक्सफोलिएट कर रहे हैं, जो कि उस टाइम भी नहीं होता. देयर आर सम सर्टेन पील्स जिनको लगा के आपको घर भेज दिया जाता है. 6 आवर्स के बाद आप उनको वॉश करते हैं, 2 दिन तक कुछ नहीं होता, थर्ड डे से आपकी स्किन इट एक्सफोलिएट, हल्का सा आपको लगेगा साइड से थोड़े थोड़े स्किन झड़ रही है, जिसको आप मॉइस्चराइज लगा के कितनी बार हाइड भी कर सकते हैं. ओके, अब जैसे किसी ने मतलब करा लिया है, ये सेशन उसका हो गया, तो उसमें उसको प्री और पोस्ट प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? प्री प्रिकॉशन, सबसे पहले आप बीच ही हॉलिडे से एकदम से आ रहे हैं तो प्लीज पील के लिए मत आइए. आपको अभी भी सनबर्न हुआ है, आप मत आइए. आपकी अभी भी कोई बहुत वेडिंग खत्म हुई है, आपने हफ्ता पूरा मेकअप डेली लगाया है, रुक जाइए थोड़ा बहुत. यू हैव एक्टिव herpes इन्फेक्शन ऑन योर फेस, प्लीज डोंट कम. इफ यू हैव recent any kind of allergy to any kind of makeup, don't come. Your skin should be infection free, should be any kind of reaction free. You're good to get chemical peel done. Post peel, your counseling has to be done enough. You have to be prepared कि मुझे अभी हफ्ता या 5 दिन आउट एंड अबाउट सन पे लंचेस पे नहीं जाना है. मेरी सोशल कमिटमेंट्स कम हो सकती हैं, मुझे 4 या 5 दिन मेकअप नहीं करना है. यू कैन अप्लाई मॉइस्चराइजर 5 to 6 times a day. आप फेस वॉश कर सकते हैं, आप सनस्क्रीन लगा सकते हैं, बट मेकअप नहीं कर सकते. नाइट का सिरम आपको 5 से 6 दिन डिपेंडिंग ऑन द पील यूज हैज टू बी अवॉइडेड. आपको रेटिनॉल, जो जो भी आप रात की नाइट क्रीम्स लगाती हैं एंटी एजिंग, that also has to be avoided. Sun exposure, too much of sweating, too much of parlor activity, bleaching, ये प्लीज अपने स्किन को हफ्ता आपको रेस्ट देना. आई गेस केमिकल पीलिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स क्लियर हुए होंगे ऑडियंस को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि हमारी स्किन पील हो जाएगी या कुछ चीज स्किन की निकल जाएगी, तो क्या ये सेफ रहेगा या नहीं रहेगा. बट आई गेस आप बहुत सारी जो गलतफहमी थी ऑडियंस को लेके हो या जिसको करवाना होगा, उसके लिए ये सब क्लियर हो गया होगा. आई होप सो, बिकॉज केमिकल पील ना सोच के और उसको केमिकल एक्सफोलिएशन अगर आप हम्म. समझेंगे ना, आप घर पे एक्सफोलिएटिंग स्क्रब्स वगैरह बनाते हैं, विच इज अगेन नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू. बेटर आप एक मेडिकल वे में थ्रू प्रॉपर चैनल केमिकल एक्सफोलिएशन जाके कराइए 2 या 3 महीने में एक बार. दैट विल स्टिल सर्व यू सम पर्पस. अब इसी से रिलेटेड अगर मैं बोटॉक्स की बात करूं, तो बोटॉक्स के बारे में तो आजकल सभी करवाते ही हैं कि फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, वो सही हो जाएंगे. तो ये किस तरीके से हेल्प करता है? अ, इतने पॉडकास्ट हैं इस पे, इतने रील्स हैं, बट स्टिल पेशेंट्स हैव इट, क्या यहाँ बोटॉक्स डलेगा, क्या यहाँ डलेगा. बोटॉक्स आपके चीक्स के इस पार्ट के लिए नहीं है, वो आपके फेस को नहीं उठाता है. प्राइमरली बोटॉक्स का जो मेन था वो आपके फोरहेड को रिलैक्सेशन देने का है. एंड यस, मैसेटर यहाँ पे हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे वो इतना डेप्थ में. इट्स बेसिकली मेंट टू गिव योर फोरहेड a very pleasant look. Let's not talk about a very plasticky look. Excess of anything is bad, and less of getting anything is of no use. So, आप जब बात करते हैं, आपकी मसल्स ऊपर नीचे हिल रही हैं. आप यंग टाइम पे भी कर रहे हैं, वो फिर रही हैं. 35-40 तक आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड, या कितनी बार मदर जिसके 2-3 बच्चे हैं वो चीखती चिल्लाती है, तो ये लाइन बनती है, आपकी मसल फटीक हो जाती है, तो वो आपकी स्किन के साथ आपकी स्किन को अब हिलाने लग जाती है. सो स्लोली स्लोली आपकी लाइन पे परमानेंटली ऐसे 11 नंबर की लाइन बन जाती है. एंड पोस्ट 40-45 यू सी पीपल हु हैव टू मच ऑफ दिस फ्राउन लुक, उनका फोरहेड पे परमानेंट लाइन आ जाती है. व्हेन यू सी, इवन व्हेन यू सिटिंग विद नो एक्सप्रेशन, आपको 11 और ये लाइन दिख रही है, अब आप सोचिए एक्चुअली यू आर क्वाइट डिलेड इन गेटिंग बोटॉक्स. सही टाइम वो होता है कि व्हेन यू टॉकिंग और आपकी ये लाइन बन रही है, इसको आप बोटॉक्स से शिफ्ट कर सकते हैं परमानेंट होने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक एंड स्टैटिक लाइन. परमानेंट और टेम्परेरी अब आप समझिए बस. टेम्परेरी बन रही है, बोटॉक्स स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो कब परमानेंट हो जाएंगी पता नहीं चलेगा. उसको प्लास्टिक के लुक के लिए नहीं दिया हुआ. इट गिव्स अ वेरी प्लेजेंट लुक ऑन योर फोरहेड. When you're angry, one can't make out because you're frowning. When you're raising your eyebrows, you're getting angry, you're showing eyebrows like I show to my children. If I get Botox, they don't know I'm actually happy or unhappy. It gives a very, very pleasant look. Like when you smile, there's a crow's feet. Like I generally like crow's feet. It's kind of more of a person thing. हो सकता है आपको लगे मुझे लाइन, मेरे बहुत पेशेंट जिनको लाइन नहीं पसंद, so we do a small dose है.
I somehow like it. I'm liking it. जब तक मुझे पसंद है मैं रखूंगी एक पॉइंट के बाद even I start doing it. But forehead Botox is to make your face very pleasant. It should be repeated after 6 to 8 months. अब ये मत सोचेगा बार बार क्यों करना पड़ा आप जिम में तो रेगुलरली जा रहे हैं ना अपनी फिजिक बनाने के लिए तो फोरहेड की फिजिक बनाने के लिए आपको 6 महीने में एक बार अपने डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ये एंटी एजिंग ट्रीटमेंट ना हमने आपकी एज को रिवर्स कर दिया उसको रोक छोड़ना दिया आप 40 से 45 हुए हैं हमने 40 से आपको 35 ले गए 35 से 38 तो आएंगे ना आप जो एजिंग एवरी डे सो एवरी 6 मंथ अगर आपको टचअप करना पड़ रहा है तो क्या बुरा है उसमें सही बात। जैसे आपने ही बताया था कि ये टेम्पररी और परमानेंट होता है। अब जैसे ये मेरे साथ ही होता है, मैंने एकदम से बात करते-करते मैं बैठी हूँ, तो मेरी आँखें ऐसी हो जाएँगी, अपने आप। कुछ भी ज़रा-सा कुछ स्ट्रेस होगा, तो वो ऐसे अगर मैं स्कूटी चला रही हूँ, तो मेरा फेस ऐसा हो जाएगा। यस तो वो ये चीज़ अब मुझे भी लग रहा है कि ये शायद ये सो टेम्पररी से ये परमानेंट अब ना हो आपके जाए। ऊपर है आप इसको फिक्स करना चाहते हो यू वांट टू हुँ, लिव विद इट इट्स नो हुँ, कंपल्शन लाइक यू व्हेन टॉक टू मी इट्स नॉट लुकिंग प्लेजेंट यू हुँ, माइट फील आई एम ओके विद इट बट द डे यू फील इट बस जस्ट मेक श्योर इट डजंट गेट टू डिले कि यहाँ परमानेंट लाइन आ गई है तो फिर बोटॉक्स का फॉर आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे ये चीज़ मुझे जेन्युइनली नहीं पता थी कि ये शायद ये टेम्पररी से परमानेंट पे भी शिफ्ट हो जाएगा। मुझे ये लगता था कि एक नॉर्मल स्ट्रेस है, शायद स्ट्रेस में आपको ऐसा हो जाता होगा, सी बट तो एनीबडी आपका हु इज 60 65 you see their permanent 11 number here हुँ। because they didn't get it done when they're 35 मैम जैसे बोटॉक्स की हमने बात करी, तो बोटॉक्स सर्जरी कराने से पहले क्या कंसल्ट करना चाहिए सही तरीके से कि क्या ज़रूरी है और किस तरीके से हमें उसको कराना चाहिए? first and foremost it's only botox treatment it's not a botox surgery there ओके। is no knife there is no cutting कोर्स आप अपने हिसाब से आपको आप अवेयर हैं मुझे हुँ, ज़रूरत है बहुत अच्छी बात है सिट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट डिस्कस विद देम द नंबर ऑफ यूनिट यूज उनको कहाँ लगता है कितना आपका यूजेज होना चाहिए समझिए क्योंकि कितनी बार ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत नुकसानदायक होती है ना कि मैंने हुँ, अब एक बार बोटॉक्स करा लिया 5 साल तक मैं सॉर्टेड हूँ नहीं आपको 7 to 8 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स के बाद डिपेंडिंग अगेन अबाउट योर लाइफ स्टाइल जो एथलीट्स होते हैं जिनका टीचर्स होता है जिनका बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं जिनके फोरहेड मसल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं उनमें हो सकता है 5 या 4 मंथ्स में आपको रिपीट कराना पड़ हुँ, जाए बैठिए कंसल्ट करिए अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताइए अगर आप एस्पिरिन पे या कोई ब्लड थिनर पे तो नहीं है हुँ, बिकॉज बोटॉक्स में नीडल यूज होती है इट्स नॉट अ सर्जरी बट नीडल यूज होती है जिसमें कभी कभी ब्रूस पड़ने का चांस हो सकता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट के उसी दिन आप सोचे मैं शाम को कहीं बाहर जाऊं ब्रूस पड़ गया देन यू विल बी अपसेट हुँ, इमीडिएटली आफ्टर बोटॉक्स 6 आवर्स तक यू कांट लाई डाउन हुँ, बिकॉज इट्स अ वाटर soluble थिंग वो आप उसको आपके मसल में सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है 6 आवर्स यू कांट बेंड डोंट डू ओके। योगा पोस्चर फॉर 2 days हुँ, डोंट गो फॉर एक्सरसाइजेस डोंट रब इट अपना फेस वॉश मॉइस्चराइजर जहाँ बोटॉक्स एरिया हुआ है वहां मत रब करिए उस एरिया को थोड़ा सा टच मत करिए सो ये सब बातें आपको समझनी चाहिए बिफोर हुँ। यू गो हेड एंड यस आपका ट्रीटमेंट प्लान लेट योर डर्मेट टेक अ कॉल अगेन लिप फिलर्स आर आल्सो ट्रेंडिंग। एवरी अदर एक्ट्रेसेस इज़ यूजिंग लिप फिलर्स और कहीं न कहीं उससे लिप्स उनके प्लम्प्ड दिखते हैं और फिर कई मतलब जैसे जो न हम लोग जैसे लोग हैं, ऑडियंस है, वो बोलते हैं कि अरे ये तो इतने प्लम्प्ड दिख रहे हैं, इन लोगों ने कुछ तो फिलर्स करवाया हुआ है, इनका कुछ भी नेचुरल ब्यूटी नहीं है। तो क्या सच में भी इतने ज़्यादा प्लम्प्ड दिखते हैं कि हमारी नेचुरल ब्यूटी उससे छुप जाती है? लिप फिलर में फिलर यूज होता है जो हुँ, हाइलुरोनिक एसिड हुँ, जो कि एक तरह का शुगर होता है ओके। जितना आप चीनी डालते रहेंगे उतना मीठा होता रहेगा हुँ, नाउ कमिंग बैक टू लिप फिलर लिप की एजिंग भी होती है जो पोस्ट 30 जैसे फेस की एजिंग होती है आपका फेस हैगल करता है हर बॉडी पार्ट आपका 30 35 40 45 के बाद यू सी द साइन ऑफ एजिंग किसी किसी के लिप के एजिंग के एस्पेक्ट 35 के बाद आने लगता है या तो आपका अपर लिप इन्वर्ट होने लगता है हुँ, और आपका लोअर लिप की बॉडी थोड़ी सी वीक होने लगती है adding lip filler to a good face adds too much of aesthetic value. Now, again, too much of anything is bad. हुँ, So, at 20, if you're getting a lip filler done, आप अपने लिप को थोड़ा accentuate करना चाहते हो आप थोड़ा सा प्लम करना चाहते हो 1 ml is enough हुँ, बहुत पतला है तो मे बी 1.5 आप 2 या 3 ml डालेंगे then of course you're causing something which was never a part of your face and which becomes very prominent if a patient or a client is okay to take that risk it's all right and to an extent it's a doctor call also to stop them that after 2 or after 1.5 I don't think you have to put on more
समटाइम इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट ऑल्सो कि मुझे बहुत पाउटी लिप्स चाहिए. फुलर लिप, पाउटी लिप और गुड लिप, दे आर थ्री डिफरेंट थिंग. अगर मैं इसी लिप को मेंटेन करना चाहती हूँ, मे बी एट 50 इट विल नॉट लुक सेम. सो इसी को मेंटेन करने के लिए मुझे हर 2-3 साल में हो सकता है सिर्फ 1 ml डालना पड़े. सो माय लिप एट 35 एंड 50 आर लुकिंग सेम. बट टुडे आई हैव पुट ऑलरेडी 1 ml ऑफ लिप. मैंने अपना लिप फिलर 1 साल पहले जैसे कराया था, बट इट डज़ नॉट लुक अननेचुरल बिकॉज़ मैंने सिर्फ उसकी बॉडी को मेंटेन किया है. But if I want to put now 1 ml more, of course they'll become pouty, and it's my choice if you want to get it done. There's nothing unnatural about it. But then हो सकता है आपको पाउटी नहीं पसंद है, मुझे पाउटी लिप्स पसंद है. लिप लिप फिलर को हम एज अ एंटी एजिंग भी कर सकते हैं, रिस्टोर व्हाट हैज बीन लॉस्ट, और इट कैन बी एस्थेटिक वैल्यू आल्सो, पुटिंग मोर व्हाट वाज नेवर देयर. तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे लिप्स स्वेल हो जाते हैं या ब्रूजिंग आ जाती है, तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? देखिए हर ट्रीटमेंट का एक एक प्रॉन्स एंड कॉन्स होते हैं. जैसे जहाँ भी नीडल यूज़ होएगी वहाँ पे ब्रूज़ के लिए अपने मेंटली थोड़ा-सा तैयार है. ब्रूज़ का चांस है, लिप बहुत वैस्कुलर एरिया है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चूज़ योर इंजेक्टर very wisely. You know, it's a very good treatment. It can be very dangerous also. So your injector has to be expert enough in doing it. ब्रूज का चांस पड़ सकता है. ब्रूज को हील होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, और जिस दिन हम लिप फिलर करते हैं, इट्स नॉट द फिलर, वो नीडल का जो इंजरी होता है ना, वही ऐसा होता है कि उसको ठीक होने में 2 दिन लग जाता है. सो लिप फिलर के बाद 2 या 3 दिन लिपस्टिक नहीं लगाना है बिल्कुल आपको. सोशल गैदरिंग तो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जो भी आपको देख के बोलेगा आपको क्या हुआ, यू विल बी टायर्ड ऑफ टेलिंग मुझे मस्किटो बाइट हो गई है, मस्किटो. 2 या 3 दिन के बाद वो स्वेलिंग डाउन होने लगती है. जो हमें ऑन टेबल लिप फिलर पे रिजल्ट दिखता है, काफ़ी हद तक 25% कम हो चुका होता है 2 दिन के बाद. वो निडल का इंजरी होता है, उससे स्वेलिंग ज़्यादा होती है, एंड प्रोडक्ट हैज़ टू बी यूज्ड गुड. जैसे आपने बताया कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट पेशेंट के रिक्वायरमेंट पे लगता है, उनको जितना भी चाहिए. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो 1-2 महीने बाद बोल रहे हैं कि मैंने इतना अमाउंट लिया था, बट अब मुझे थोड़ा और प्लम्प्ड चाहिए या और पाउटी लुक चाहिए, तो ये ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल, मतलब ट्रीटमेंट को महीने के बाद भी रिपीट करा जा सकता है. आई थिंक काफ़ी हद तक ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच का एक कॉन्सेंट है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है. इफ द पेशेंट वांट्स एंड द डॉक्टर इज ओके कि ठीक है एक और भी एमएल हम डालेंगे तो इट विल नॉट लुक बैड, एंड द एबल टू कन्विंस देम, एंड द डॉक्टर हिमसेल्फ इज कन्विंस्ड, द इंजेक्टर इज कन्विंस्ड, I think one can easily do it. There's no side effect to it. It should be same product. Don't mix the product. और आपने अभी प्रिकॉशंस की भी बात करी कि लिपस्टिक्स यूज़ नहीं करना है, सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना है, बट जैसे कई सभी लोग, जैसे हमारी मम्मी-दादियाँ बोलती हैं कि स्वेलिंग हो जाती है तो आप बर्फ से उसको सिकाई कर लो या ऐसी चीज़, तो ऐसे करने से यूज़फुल बिल्कुल, when रहेगा? you use icing, it definitely help to reduce the inflammation. Icing is the best way to reduce the inflammation. ये तो मैम हमने इतनी सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर ली, अब मैं कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करना चाहूँगी, जिसके बारे में जैसे लोग होम रेमेडीज़ भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके। जैसे सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में है कि हेयर फॉल को लेके लोग अनियंस Yeah. सोचते हैं कि अनियन से बालों की ग्रोथ भी होगी और हेयर फॉल भी रुकेगा। तो क्या वो एक सही चीज़ है? सबसे पहले हेयर फॉल में आपको कॉज़ ऑफ हेयर फॉल जानना ज़रूरी है. अगर किसी को 5 साल से हीमोग्लोबिन लो है और उसको अब हेयर फॉल हो रहा है, अनियन उसमें कुछ हेल्प नहीं करेगा, ना आपका रोज़मेरी करेगा, और शायद मिनॉक्सिडिल भी हेल्प ना करे. रूट कॉज़ ऑफ हेयर फॉल जानना बहुत ज़रूरी है. हीमोग्लोबिन, B12, D3, योर थायरॉइड, आपका पीसीओडी, पीसीओएस, चाइल्ड बर्थ हुआ है, कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन है, आपको कोई सीवियर वायरल इलनेस, कोविड, हॉस्पिटलाइज़ेशन, सर्जरी, अगर ये सब चीज़ें हैं और इनको हमने ट्रीट नहीं करा, then no treatment is helpful. And I will only talk science, then minoxidil से ज़्यादा रिसर्च मॉलिक्यूल डर्मेटोलॉजी में कोई नहीं. एंड ये कि मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करेंगे कभी बंद नहीं कर सकते हैं. अगेन दिस इज अ मिथ. फीमेल्स में मिनॉक्सिडिल का दूसरा पर्पस होता है, मेल्स में अलग होता है. मेल्स में मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए होता है. जब तक उनको बाल चाहिए उनको मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा. फीमेल्स में मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं होती, यू डोंट गो बॉल्ड. आपके ओवरऑल हेयर शेडिंग होता है जिसको मिनॉक्सिडिल रिवर्स कर देता है. एक बार आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो गया है तो मिनॉक्सिडिल धीरे धीरे आपके डॉक्टर टेपर करेंगे. बट जो ये लिस्ट ऑफ चीजें मैंने आपको बताई हैं, पहले इनको आप रेक्टिफाई करिए. Onion juice could be of help, but I need some science to talk about it. If I talk about dandruff,
people say that अगर आपके बालों में dandruff है, you should skip oiling. So is it true or not? Oiling is good and is bad. It's good for your hair strand. It has been proven scientifically आपका ये hair strand जो होता है, although it's lifeless, but when you give only a little bit of a drop of oil to it, it acts like a leave-on conditioner to it. ये आपको बहुत ज़्यादा sun से, धूल से, pollution से prevent करता है. Oiling on the scalp is not a good idea. आप जो खा रहे हैं, आपके जो हार्मोन्स हैं, जो आपकी डाइट है, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जीन है, वही आपका बाल बना रहा है। ऑयल आपका बाल नहीं बनाएगा। बड़ा आपको ऑयल का फिर भी है, मे बी 10 मिनट्स मसाज just half an hour before your shampoo makes sense. When you have dandruff, a severe kind of dandruff, आपका seborrheic dermatitis, आपका seborrheic gland पूरा irritated है। उस पे ऑयल लगा के आप उसको और खराब कर रहे हैं। Oil is a food for your dandruff. You're providing more food for your dandruff. When you have dandruff, you have to switch to ketoconazole shampoo and coal tar based shampoo, salicylic based shampoo. मुझे ड्राइनेस है, मुझे डैंड्रफ है, नो आपको डैंड्रफ आपके सिबोरिया की वजह से समटाइम बहुत सीवियर केसेस में ओरल टैबलेट्स भी देनी पड़ती है हमें डैंड्रफ के लिए ऑयलिंग ओनली ऑन द स्ट्रैंड्स not very vigorous a very light one which can help you as a leave on condition oiling on the scalp strictly no 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 अब ऐसा भी बोलते हैं जैसे बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो लेजर ट्रीटमेंट नहीं करा के फेस शेव करती हैं, मतलब जो फेस रेजर्स आते हैं जिससे ऐसा भी बोलते हैं कि उस पे जो हेयर आपके आएंगे वो थिक हो जाएंगे, तो क्या ये ऐसा है और इज इट सेफ टू यूज दैट फेस रेजर ऑन फेस और नॉट? So whenever you talk about the hair reduction on the face, the first is laser hair reduction. Second, you can go for repeated razor. Third, you can maybe try nothing else. I don't think there's anything. Those threading, waxing, bleaching. अगर वो सब कराने से अच्छा आप hair के साथ रहें. There's so much of science involved in making those lasers, the heavy duty lasers, जो फेस पे यूज होती हैं आपके हेयर फॉलिकल को डैमेज करती हैं बहुत रिसर्च के बाद वो मशीन आई है और अब इजीली अवेलेबल है कमिंग टू द रेजर रेजर से आपका हेयर फेस का कभी थिक नहीं होता आपके बाल पहले नॉर्मल थे फिर थिक हुए हैं बिकॉज ऑफ योर हार्मोन इफ यू हैव पीसीओडी यू हैव पीसीओएस आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डीएचईएस लेवल हाई है प्रोलैक्टिन लेवल डिसफिगर्ड है दिस विल कॉज योर हेयर फॉलिकल टू गिव थिकर हेयर रेजर आप ऊपर से बाल हटा रहे हैं हेयर फॉलिकल से बन रहा है it can never cause a thick hair. And for laser, for hair removal, there is nothing other than laser hair reduction. Another myth I want to talk about is that dark circles can only caused by lack of sleep. Is it true or not? Is there any other causes as well? Um, Lack of sleep is one of the main cause of dark circles. Next is genetic. If your parents have those deep socket eyes, you will have it. You have too much of screen exposure. Blue light बहुत ज़्यादा आपकी eye की fatigueness शुरू हो जाती है. Applying too much of eye makeup. Some specific deficiency. B12 or iron perpetual आपकी deficient है. These are the cause of your dark circles. And they are difficult to treat. Dark circles are difficult to treat if you have a very strong genetic of dark circles. एक और चीज़ है जैसे बहुत सारे जो फेस मास्क होते हैं, जो डीआईवाई मास्क होते हैं, उसमें बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडियाज़ पे हम देख मीडिया पर देखते हैं, लेमन का यूज़ करते हैं फेस के लिए। तो क्या लेमन सेफ होता है फेस पर लगाना? I'm not in for lemon at all. इतना एसिडिक कंटेंट लगाने की मुझे नहीं ज़रूरत लगती है आपको डीआईवाई मास्क का बहुत ज़्यादा है आप किस किस का मिक्सचर बना सकते हो यू हैव हनी यू हैव एलोवेरा यू हैव मैश बनाना यू हैव avocados you can use curd maybe add a bit of basil turmeric again can be controversial if your skin is allergic to it do not use it इनमें से आप किसी का भी ओट्स मील ओट ग्राइंड ओट्स इनमें से किसी का भी कोई भी आप दो चीजों का मिक्सचर उठा के अगर आप डीआईवाई बना लें इट विल गिव यू दैट हाफ अ डे और वन डे ऑफ नाइस फील यू लाइक इट आप हफ्ते में 2 बार लगाएं कोई भी डीआईवाई मास्क आपके एक्टिव रेटिनॉल्स या एक्टिव को नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकता जो आपको डीआईवाई में नहीं डालने चाहिए कॉफी स्क्रब वो आपकी स्किन को माइक्रो टीयर्स देता है एक बार माइक्रो टीयर्स बन गए देन यू हैव अ लॉन्ग 1 or 2 weeks ऑफ जर्नी टू रिकवर शुगर people use sugar as a scrub
lemon, salt, baking powder, baking soda, toothpaste. These are the things you should avoid whenever you're making DIY for your skin. It's your skin, yeah. It's not a recipe for paneer tikka जो आपको खाना है. आपकी स्किन पे जाना, आपका स्किन का बैरियर बहुत सॉफ्ट होता है. It's very delicate. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए उसको विद ट्राइंग विद योर ओन हाफ नॉलेज. एक और सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन केयर इज ओनली मेड फॉर वुमेन नॉट फॉर मेन. Oh, very wrong myth. I believe men needs more skincare as compared to female. Their sebaceous glands are bigger in number. They have more sebaceous gland. Their outdoor activity somehow tend to be more. I'm not saying females are not going out. Their bike exposure, their dust exposure. Okay, now if I talk about the husband and wife type, the husband outdoor exposure to the sun and everything will end up being more. You know, they need actually more skincare as compared to females. Their face wash should be 3 times or 2 times a day. Their sunscreen should be there. They should have a good moisturizer. They should have a skin regime जिसमें वो रात को रेटिनॉल लगाएं जिसमें उसका सन डैमेज रिवर्स हो. उनको हफ्ते में 6 हफ्ते में एक बार एक मेडी फेशियल एटलीस्ट और स्किन induce or this laser toning should be gifted at least. Their sebaceous secretions, sebaceous gland are more active than they are more prone for acne. They are more prone for photoaging. अब मैम अगर डर्मैट का नाम आ जाता है तो लोग सोचते हैं कि डर्मैट तो सिर्फ चेहरा ही देखेगा, बस उसी तक सीमित रहता है उन लोगों का सोचना. तो इस पर आप क्या बोलेंगी? आई थिंक वो नाम जो डर्माटोलॉजिस्ट है ना वो भी बहुत बड़ा मिसनॉमर है. डर्मा पेशेंट ओनली अंडरस्टैंड स्किन. डर्मा का मतलब ओरिजिन जो होता है वी टेक केयर ऑफ स्किन, हेयर, नेल, लेप्रेसी एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. तो कितनी बार पेशेंट को पता ही नहीं होता. सो देयर टाइम इवन आफ्टर लाइक 15 years ऑफ माय प्रैक्टिस पेशेंट कम एंड से आप हेयर भी देखते हैं, आप नेल भी देखते हैं. यस, डर्मेटोलॉजिस्ट सी योर स्किन, दे विल टेक केयर ऑफ योर नेल, योर हेयर, sexually transmitted disease, and of course we are certified in treating leprosy also. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपसे कि हाउ विल यू recommend our audience to stay happy and positive in their life? So I would advise to all the teenagers and youngsters specifically, don't get too overwhelmed with the social media. What is shown is not true. What you see with the celebrity skin and hair is not always true. You have to believe in science. I keep telling to all my patients, अगर आपको एक ट्रीटमेंट आपका सर्टिफाइड डॉक्टर बता रहा है तो वो उस चेयर पे बहुत रिसर्च करके ही आपसे बात कर रहे हैं. यू आर नॉट अ गिनी पिग जिस पे ट्रीटमेंट ट्राई किया जा रहा है. डोंट हैव ओवर एक्सपेक्टेशंस कि 1 महीना हो गया बाल झड़ना रुक जाएंगे, 1 महीना हो गया स्किन ग्लो करने लग जाएगी. स्किन केयर इज एन इन्वेस्टमेंट जिसके रिटर्न आपको 5 या 6 महीने के बाद आने लगते हैं. रादर देन गोइंग टू द पार्लर फॉर, अगर आप पार्लर जाके फेशियल कराते हैं यू लाइक इट, गो हेड, गिव चांस टू ट्रीटमेंट्स लाइक मेडिफेशियल, लेजर टोनिंग. दे कैन बी big game changers to your skin concern. Don't get overwhelmed. Don't get into this 7 layer of regime to the skin. आपकी स्किन को इतनी ज्यादा layers of regime नहीं चाहिए होता. Simple cleansing toner भी आप omit कर सकते हैं. Moisturizer, your sunscreen, one active serum depending on your skin type is more than sufficient. Don't get very overwhelming with what is happening in the social media. You don't have to follow every trend on your skin. So thank you so much, Dr. Pallavi, with all these useful information. I really enjoyed this session and I hope कि आपको भी हमारे साथ जुड़ के अच्छा लगा होगा. बहुत अच्छा लगा मुझे. I was very happy to share all the insights to the बहुत सारी patients. चीजें ये भी कि मिथ्स थे, मिसकंसेप्शन थे, तो बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई आपसे बात करके और आई गेस हमारी ऑडियंस को भी Exactly. सब चीजें समझ में आई होगी. अब वो ये सब ट्रीटमेंट लेने से डरेंगे नहीं. आई गेस इतनी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें मिली है कि ये भी चीज सेफ हो सकती है, तो आई गेस अब वो लोग जिनको प्रॉब्लम होगी I will suggest them to seek a dermatologist for their problems Yes, as well. only treatment is not our aim. Our aim is also to educate them. Yeah, It is exactly. there. So don't be very scared about it. अगर आप कॉफी को फेस पे लगाते हो नहीं डरते तो आपको फिर किसी चीज से भी नहीं डरना चाहिए. ऐसी ही तमाम पॉडकास्ट के लिए बने रहिए कमाल जिंदगी प्रोडक्शंस के साथ. थैंक यू.